Hello everyone, and I hope you all are doing well and the students they are working hard to excel in their exams. So today we are going to discuss unit 3, paper 1, literary movements, theorizing the postmodern towards a poetics. This is the title, and the writer of this essay is Linda Hunchian. So, question would be discuss the concept of postmodernism in the light of Linda Hunchian's essay, or how she theorized the concept of postmodernism. So, to theorize means how she is putting it in clear, concise words and how she is explaining the background behind it. So, what kind of poetics does the concept of postmodernism require? So, how it has to be defined. So, first of all, it's important to know about Linda Hunchian, who she is. She is a Canadian theorist who is not widely known for her extensive writings on postmodernism and feminism. All her works are featured by her valuable background in literature, her fascination with art and architecture, and her way of thinking. Theorizing the postmodern towards a poetics is an attempt by her to provide a deeper knowledge of the concept of postmodern. So ये ऐसे में क्या लिख रही हैं राइटर, यहाँ पे वो इस कॉन्सेप्ट को, पोस्ट मॉडर्न का जो कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में हमें डीपर नॉलेज प्रोवाइड करा रही हैं. एन आइडिया दैट शी असर्ट्स is regular. So what is postmodern? That's an idea. So it's an idea, postmodern, an idea that she asserts is regularly underestimated by both its supporters and doubters. So some people support postmodernism, some people doubt it, but it is underestimated by both of them. So Linda views the prefix post as contradictory. Now why it is contradictory? This prefix post. Prefixes जब आप किसी वर्ड के पहले कुछ जोड़ देते हो वो प्रीफिक्स होता है. जैसे पोस्ट मॉर्टम, पोस्ट मॉडर्निज्म, पोस्ट पोन. सो पोस्ट इज़ अ प्रीफिक्स इन ऑल दीज वर्ड्स. तो यहाँ पे जो पोस्ट है वो कॉन्ट्राडिक्टरी है. सिंपल सी चीज़ है, ये समझ लीजिए. वी यूज़ पोस्ट दैट कम्स आफ्टर वर्ड्स. जो बाद में आता है हम उसके लिए पोस्ट लगा सकते हैं. सो अकॉर्डिंग टू दिस जो चल रहा है वो मॉडर्न होता है. तो इसका तो मतलब बना कि पोस्ट मॉडर्निज्म में भी आना है. दैट इज़ येट टू कम. दैट इज़ हाउ दिस टर्म इज़ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल. पोस्ट मॉडर्निज्म भी और प्रीफिक्स पोस्ट भी इट्स कॉन्ट्रोडिक्टरी. अपने आप को ही कॉन्ट्रोडिक्ट कर रही है ये. विच शोज़ इंडिपेंडेंस एज वेल एज डिपेंडेंस. तो इस on the literary movement that made it possible, the modernism. So which movement made the postmodernism possible? It is the modernism. Modernism के ऊपर ही postmodernism खड़ा है. Modernism की जब हम बात करते हैं तो modernism का ही next step postmodernism है. So thus postmodern forms a contradictory relation to modernism. तो postmodernism और modernism का दोनों का आपस का contradictory relationship है. You cannot put them together. You can neither segregate them into two water tanks, right? So these cannot be clubbed together at the same time. These cannot be separated altogether. तो ना इनको हम इकट्ठा कर सकते हैं बिल्कुल, ना ही इनको बिल्कुल हम अलग कर सकते हैं. So here it highlights neither a simple and radical break from it nor a straightforward continuity with it. It is both and neither. तो पोस्ट मॉडर्निज्म और मॉडर्निज्म बिल्कुल सिंपल भी नहीं है, एक दूसरे से अलग भी नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्टीन्यूटी भी नहीं है. इट इज़ बोथ एंड नाइदर. या दोनों हैं या दोनों नहीं हैं. अकॉर्डिंग टू हर इट इज़ अ कॉन्ट्राडिक्टरी फिनोमिना दैट यूजेस एंड अब्यूजेस, इंस्टॉल्स एंड सबवर्ट्स द वेरी कॉन्सेप्ट इट चैलेंजेस. तो यहाँ बेसिकली वो हमें क्या बता रही हैं कि जिस कॉन्सेप्ट को यहाँ चैलेंज किया जा रहा है उसी को यूज़ किया जा रहा है और उसी को अब्यूज़ किया जा रहा है. जैसे अगर हम बात करें पोस्ट मॉडर्निज्म क्या है, वी वुड से कि पोस्ट मॉडर्निज्म मॉडर्निज्म के ऊपर ही बेस्ड है, वन पॉइंट. बट अगले ही पॉइंट में, अगले ही सेंटेंस में हम कहेंगे कि पोस्ट मॉडर्निज्म इंटायरली डिफरेंट है मॉडर्निज्म से. तो जिस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके पोस्ट मॉडर्निज्म खड़ा हुआ है उसी कॉन्सेप्ट को वो आगे
कॉन्ट्राडिक्ट भी कर रहा है। तो एक बार हम कहेंगे कि दे आर क्लब्ड टुगेदर, दे आर लिंक्ड टुगेदर, और अगले ही सेंटेंस में हम कहेंगे कि उनमें आपस में बहुत डिफरेंस है। एंड दैट इज़ वाई शी सेइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म इज़ अंडर एस्टिमेटेड. So, but it does not reject the past outrightly, nor accepts the present slavishly. तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम पास्ट को बिल्कुल इग्नोर कर दें, हम बिल्कुल पोस्ट मॉडर्निज्म की ही बातें करें, ना ही इसका मतलब है कि हम प्रेजेंट को ब्लाइंडली फॉलो करें. तो ये पूरे ऐसे में कॉन्ट्राडिक्शंस ही आनी है आपको, जो आपको समझनी है. पोस्ट मॉडर्निज्म इज़ अ टेम्प्ररी, अनएक्सपेक्टेड, कॉम्प्लेक्स एंड प्लेफुल व्यू ऑफ व्यूइंग द पास्ट. अब बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. मॉडर्निज्म में हमारे पास एक प्ले आया, मर्डर इन द कैथीड्रल. वो अपने आप में नया था. उस टाइम पे जब रियलिज्म वाज इन फुल स्विंग, उस टाइम पे टी.एस. इलियट ने सोचा ऑफ राइटिंग अ पोइटिक ड्रामा. दैट्स पोइटिक ड्रामा, जो 11th सेंचुरी के थीम के ऊपर, स्टोरी के ऊपर बेस्ड है. बट उसके बाद हमारे पास वर्ल्ड वॉर के बाद आता है वेटिंग फॉर गोदो. मर्डर इन कैथीड्रल इज़ अ वेल मेड प्ले. बिगनिंग है, मिडल है, एंड है, एक्ट्स हैं, सीन्स हैं, कोरस है, कैरेक्टर्स हैं, देयर इज़ समथिंग दैट इज़ गोइंग ऑन, हमें समझ में आता है. बट व्हाट अबाउट वेटिंग फॉर गोदो? नथिंग इज़ क्लियर व्हाई दे आर वेटिंग देयर, फॉर व्हाट दे आर वेटिंग, हाउ लॉन्ग दे हैव बीन वेटिंग, और अल्टीमेटली मिस्टर गोदो हैं कौन? वेदर ही इज़ अ सेवियर, अ रिच एम्प्लॉयर, अ रिच मैन, अ क्रूअल ruler, or what? Nobody knows. And we are free to give as many interpretations as we can. So that is the beauty of postmodernism. अगर मॉडर्निज्म को हम कहते हैं कि it breaks the rules, postmodernism is celebration of that break of rules. So next writer क्या कहती हैं? She's saying the earlier idea that one can analyze any framework or concept without being involved is overthrown. तो यहाँ वो साफ साफ क्लियरली बता रही हैं कि अगर ये वाला कॉन्सेप्ट है कि आप बिना इन्वॉल्व हुए, बिना इन्वॉल्वमेंट के अगर आप किसी भी कॉन्सेप्ट को एनालाइज कर सकते हैं, तो दिस आइडिया इज़ ओवरथ्रोन. यू हैव टू गेट इन्वॉल्व्ड. विदाउट बीइंग इन्वॉल्व्ड आप कुछ नहीं कर सकते. शी एड्स दैट प्रेजेंट ऑर्डर कैन बी स्टडीड थ्रू लॉजिक एंड बाय यूजिंग एंड अब्यूजिंग वेरिएबल्स. तो एक चीज़ को बनाने वाले जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको वेरिएबल्स बोलते हैं. अगर मॉडर्निज्म बना है तो मॉडर्निज्म के वेरिएबल्स आ जाएंगे वो सारी टेक्निक्स, चाहे वो इमेजिज्म है, चाहे वो वॉटिसिज्म है, चाहे वो दादाइज्म, सरलिज्म, जितने भी इज़म्स हैं, तो वो सारे के सारे जो हैं उनको यूज़ और अब्यूज़ किए बिना नथिंग कैन बी, लाइक नो कंक्लूजन कैन बी reached. So she adds that present order can be studied through logic and by using and abusing the variables, जिनको पार्ट्स या कंपोनेंट्स भी बोलते हैं. अब जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं इसके दो वेरिएबल्स कौन से हैं? मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म. इनके अंदर और भी वैरायटी है, लेकिन फ़िलहाल वी आर डीलिंग विद दीज टू वेरिएबल्स, मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म. शी कॉल्स पोस्ट मॉडर्निज्म, वो क्या कहती हैं पोस्ट मॉडर्निज्म को? फंडामेंटली कॉन्ट्रडिक्टरी. बेसिकली ही कॉन्ट्रडिक्टरी है ये. रेजोल्यूटली हिस्टोरिकल एंड इनएस्केपेबल पॉलिटिकल. तो कॉन्ट्राडिक्टरी भी है पोस्ट मॉडर्निज्म, पॉलिटिकल भी है. लाइंडा व्यूज लिटरेरी टेक्स्ट एज मैनिफेस्टेशंस ऑफ पोस्ट मॉडर्निटी. तो वो ये मानती हैं कि जो लिटरेरी टेक्स्ट हैं वो पोस्ट मॉडर्निज्म की मैनिफेस्टेशन है, उनका शो है, उनका दिखावा है. हमें इसमें से उनकी झलक दिखती है. Therefore she coins the term historiographic metafiction. तो इसी वजह से, क्योंकि वो कहती हैं कि लिटरेरी टेक्स्ट में हमें पोस्ट मॉडर्निटी दिखती है, तो उन्होंने एक टर्म कॉइन किया है historiographic metafiction, which includes the novels that are both intensely self-reflexive and based on historical events and personages. तो historiographic metafiction में क्या है? वो सारे के सारे नॉवेल्स हैं बच्चे जो बहुत ज़्यादा इंटेंसली सेल्फ रिफ्लेक्सिव हैं, एट द सेम टाइम they are based on historical events and personages, मतलब great personalities. The study of postmodernism is based on narrative in literature, history and theory, and historiographic metafiction involves all three domains. तो postmodernism की जब हम स्टडी करते हैं तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे नैरेटिव है, नरेट कैसे की जा रही हैं चीज़ें, बताई कैसे जा रही हैं, किसमें? बेस्ड ऑन नैरेटिव इन लिटरेचर, हिस्ट्री एंड थेरी.
और हिस्टोरिकल मेटाफिक्शन जो है दैट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस थ्री, उसमें सारे हैं, ये सारे डोमेन्स हैं। हिस्टीरियोग्राफिक मेटाफिक्शन का मतलब है लिटरेचर, हिस्ट्री एंड थेरी। लिटरेचर, हिस्ट्री एंड थेरी, तो चाहे वो लिटरेरी बुक्स हैं, राइटर्स ने लिखी हैं, चाहे वो हिस्टोरियंस ने हिस्ट्री की बुक्स लिखी हैं, चाहे क्रिटिक्स ने अपनी कोई थेरी अप्लाई की है या थेरी दी है। सो ऑल दीज थ्री कम अंडर हिस्टीरियोग्राफिक मेटाफिक्शन। हिस्टीरियोग्राफिक मेटाफिक्शन. So postmodernism creates self-awareness of history and fiction and how different movements have led to the rethinking and reworking of previous concept and modes of writing. तो यहाँ पे पोस्ट मॉडर्निज्म में क्या है, पोस्ट मॉडर्निज्म क्रिएट कर रहा है सेल्फ अवेयरनेस, हमें जागरूकता दे रहा है ऑफ हिस्ट्री एंड फिक्शन। तो जो हिस्ट्री रही है, इतिहास रहा है, फिक्शन रहा है, उसके बारे में हमें सेल्फ अवेयरनेस क्रिएट हो रही है। किसके द्वारा? पोस्ट मॉडर्निज्म के द्वारा वो की जा रही है। एंड हाउ डिफरेंट मूवमेंट्स हैव लेड टू द रीथिंकिंग एंड रीवर्किंग ऑफ प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स। तो जब भी कोई मूवमेंट आती है उसमें कोई ना कोई पुरानी चीज़ रिवाइव ज़रूर होती है। जैसे फैशन में ट्रेंड्स आते हैं, 10-20 साल बाद या 50 साल बाद वो सारे स्टाइल्स आएंगे जो शायद हमारे मदर्स ने, हमारे ग्रैंड मदर्स ने पहने हों। तो जैसे फैशन बार बार रिवाइव होता है, वैसे लिटरेरी मूवमेंट्स, लिटरेरी ट्रेंड्स जो हैं वो भी रिवाइव होते हैं। और इनसे क्या होता है, हाउ डिफरेंट मूवमेंट्स हैव लेड टू द रीथिंकिंग एंड रीवर्किंग ऑफ प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स। तो जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स हैं उनको रीथिंक किया जाता है, उनके ऊपर रीवर्क किया जाता है। The focus on the past has been misinterpreted by several theorists like Frederick Jameson. They call it negative and looks at it as imprisoning of the text in the past through pastiche. इसकी pronunciation pastiche है, जिसको पैरोडी भी बोलते हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है कि जो फोकस है ना पास्ट के ऊपर, उसको मिसइंटरप्रेट किया है बहुत सारे थेरिस्ट ने। उनमें से एक है फ्रेडरिक जेमसन। इन्होंने अगर किसी टेक्स्ट में पास्ट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया गया है, फोकस किया गया है, तो फ्रेडरिक जेमसन जो हैं उन्होंने उसको क्या किया, ही हैज़ मिसइंटरप्रेटेड फोकस ऑन पास्ट। और ऐसे बड़े सारे थेरिस्ट हैं जो इसको क्या कहते हैं, पास्ट को नेगेटिव कहते हैं। और वो कहते हैं कि अगर आप पास्ट के साथ जुड़े हुए हो, आप पास्ट को देख रहे हो, दे लुक एट द पास्ट, दे लुक्स एट इट, दे कॉल इट एंड लुक एट इट, दे कॉल इट एंड लुक एट इट एज इम्प्रिजनिंग ऑफ द टेक्स्ट, कि आपने टेक्स्ट को जेल में डाल दिया, आपने टेक्स्ट को एक फ्रेमवर्क में कैद कर दिया थ्रू पेस्टिश। अब पेस्टिश का मतलब क्या है, अगर पुराने टेक्स्ट के बेसिस पे कोई नया टेक्स्ट बने, जैसे पुरानी मूवीज़ को दोबारा से नया बना देते हैं। एक पुरानी मूवी आई थी जुड़वा, आई गेस दैट वाज ऑफ गोविंदा, और एक नई जुड़वा आई थी जो वरुण धवन की थी, राइट। सो दैट इज़ पेस्टिश। मतलब अगर कोई पुराना टेक्स्ट बहुत अच्छा लिखा गया, बड़ा फेमस हुआ है, अगर उसको यूज़ करके, उसका प्लॉट यूज़ करके, उसमें माइनर चेंजेस करके, या एज इट इज़ उससे इंस्पायर होकर अगर कुछ नया बनता है, दैट इज़ पेस्टिश या पैरोडी। हमारे पास 2 एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे। वेटिंग फॉर गोदो जैसा ही एक और प्ले है, हैमलेट आपने सुना होगा, शेक्सपियर का था। तो उसके जो सब प्लॉट था उसको मेन प्लॉट बना के टॉम स्टॉपर्ट ने प्ले लिखा था। शेक्सपियर के प्ले में से ही टाइटल लिया था, रोज़नक्रांस एंड गिल्डेनस्टर्न आर डेड। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यूजीसी का क्वेश्चन है ये। तो वो पेस्टिश है। रॉबिन्सन क्रूसो जो डेनियल डीफो का लिखा गया नॉवल है, उसके ऊपर जेम कोइट्जी ने लिखा है फो, जिसमें आधी स्टोरी आधा प्लॉट रॉबिन्सन क्रूसो का ले लिया, लेकिन उन्होंने बीच में एक फीमेल कैरेक्टर डाल दी। दैट इज़ अ पेस्टिश। जब किसी बहुत फेमस वर्क के ऊपर रीवर्क होता है, डबल सेकेंड टाइम वर्क होता है, आइदर completely relying on the plot जो पहला था, या उसमें थोड़ी चेंजेस करके, दैट इज़ पैरोडी। But Linda calls this revisiting of history a liberating experience and a challenge to ignorance of history so far. तो यहाँ पे लाइंडा ऐसा बिल्कुल नहीं मानती हैं। वो कहती हैं कि अगर कोई पास्ट को रिविजिट करता है, पास्ट से इंस्पिरेशन लेता है, इसका मतलब वो लिबरेट कर रहा है अपने एक्सपीरियंस को। और जो इग्नोरेंस है हिस्ट्री की, कि हिस्ट्री के बिना काम चल जाएगा, दिस इज़ अ चैलेंज टू इट। सो पोस्ट मॉडर्निज्म इज़ ऑफन कंसिडर्ड अहिस्टोरिकल because of its preoccupation that history can be revisited through texts. तो इसको अहिस्टोरिकल भी मानते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म को,
क्यों क्यों मानते हैं? बिकॉज ऑफ इट्स प्री ऑक्यूपेशन नोशन, नोशन मतलब आइडिया, दैट हिस्ट्री कैन बी रीविजिटेड थ्रू टेक्स्ट, कि टेक्स्ट के थ्रू हिस्ट्री को दोबारा से जाना पहचाना जा सकता है. इट इज़ सेड दैट द पोस्ट मॉडर्निस्ट हैव थ्रोन हिस्ट्री इन द डस्टबिन एंड आर्ग्यूड दैट हिस्ट्री डज नॉट एग्जिस्ट एक्सेप्ट टेक्स्ट. तो बड़े सारे ऐसे भी हमारे पास राइटर्स हैं, पोस्ट मॉडर्निस्ट हैं, जो मानते हैं कि हिस्ट्री को डस्टबिन में फेंका गया है और हिस्ट्री जो है टेक्स्ट बुक के अलावा कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती, हिस्ट्री है ही नहीं कहीं. बट अगर रियलिटी देखें तो एवरी पासिंग सेकेंड इज़ हिस्ट्री, और ये कहीं रुकती नहीं है. इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस. अभी जो मैंने अब से 5 मिनट पहले बोला वो कभी भी रिकॉल नहीं हो पाएगा, और उसी में और अल्फाज जुड़ते जा रहे हैं, हिस्ट्री आगे बढ़ती जा रही है. पोस्ट मॉडर्निज्म, दिस इज़ वी आर डन विद इट. It is said that it is thrown in the dustbin and history doesn't exist except the text. Moreover, postmodernists have given a thought and rethought to history as a human construct. वो कहते हैं कि हिस्ट्री जो है वो ह्यूमन कंस्ट्रक्ट है, उसको बनाने वाला ह्यूमन बींग है. They have argued that history existed and reached us through the text. तो कुछ ये मानते हैं कि हिस्ट्री एग्जिस्ट करती थी, कुछ कहते हैं नहीं. दिस इज़ कॉल्ड सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी, एक ही बात को दो अलग अलग तरीके से. तो कुछ मानते हैं कि हिस्ट्री जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती थी, कुछ मानते हैं कि करती थी. हिस्ट्री एग्जिस्टेड एंड रीच्ड अस थ्रू टेक्स्ट. इन फैक्ट हिस्ट्री हैज़ कंडीशनड टेक्सचुअलिटी. History portrays or paints reality and it is not possible to recover the truth without text. तो अगर आप टेक्स्ट नहीं पढ़ते हो तो आप जो ट्रुथ है उसको कभी भी रिकवर नहीं कर सकते. It is said that history and its documents, its evidences, even the eyewitnesses, they are record. और कैसे कौन से रिकॉर्ड्स हैं? वो टेक्स्ट हैं, वो टेक्स्ट हैं, accounts are texts. So ironic parody is the next point. Is one of the most important literary technique to analyze and evaluate historical view in text. तो जो भी टेक्स्ट में हिस्टोरिकल व्यू आता है उसको एनालाइज करने के लिए जो एक बेस्ट टूल है, टेक्निक है, वो है आयरॉनिक पैरोडी. सो पोस्ट लाइंडा कॉल्स इट अ परफेक्ट पोस्ट मॉडर्न फॉर्म. जो मैंने अभी बताया कि रॉबिन्सन क्रूसो के ऊपर फो और हैमलेट के ऊपर बना है टॉम स्टॉपर्ट का रोज़नक्रैंस एंड गिल्डनस्टर्न आर डेड. तो ये पैरोडी की, पेस्टिश की एग्जांपल्स हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन. और होता क्या है, हैमलेट में जो मेन कैरेक्टर है हैमलेट, उसके 2 चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं रोज़नक्रैंस एंड गिल्डनस्टर्न. तो उनको मेन कैरेक्टर्स बना दिया टॉम स्टॉपर्ट ने अपने इस प्ले में, और जो मेन था हैमलेट उसको माइनर कैरेक्टर बना दिया. एंड इट हैज़ बीन प्रेजेंटेड एज अ एग्जिस्टेंशियलिस्ट टेक्स्ट. जैसे वेटिंग फॉर गोदो है एब्सर्डिस्ट प्ले है, काफ़ी हद तक उससे मिलता जुलता है ये. सो पैरोडी क्या है? पैरोडी एज अ स्टाइल एंड टेक्निक प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रीअसेसमेंट ऑफ द नैरेटिव. रीअसेसमेंट, जो पहले लिखा गया है उसको दोबारा से इवेलुएट करना. शी एड्स दैट पोस्ट मॉडर्निज्म डील्स विद अनक्वेश्चनड नैरेटिव्स, चैलेंजेस टू यूनिफॉर्म मास कल्चर एंड असर्शन ऑफ डिफरेंसेस. तो पोस्ट मॉडर्निज्म किसके साथ डील करता है? अनक्वेश्चन नैरेटिव, ऐसे नैरेटिव जिनको क्वेश्चन नहीं किया गया पोस्ट मॉडर्निज्म में उनको उठाया जाएगा. चैलेंज किया जाएगा यूनिफॉर्म मास कल्चर को, दैट देयर इज़ वैरायटी एंड वी नीड टू एक्सेप्ट इट, एंड असर्शन ऑफ डिफरेंसेस की डिफरेंसेस हैं, एग्जिस्ट करते हैं, एंड वी हैव टू वैल्यू दैम. पोस्ट मॉडर्निज्म हैज़ अ कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशनशिप विद लिबरल ह्यूमनिस्ट कल्चर because it does not work to create a homogeneous identity. तो पोस्ट मॉडर्निज्म तो बिल्कुल भी कहीं भी होमोजीनियस सेम आइडेंटिटी की बात नहीं कर रहा. हमने ऊपर भी डिफरेंसेस की बात की है, यहाँ भी डिफरेंसेस की बात हो रही है, इसलिए ये लिबरल ह्यूमनिस्ट कल्चर से अलग है, कॉन्ट्राडिक्टरी चलता है. पोस्ट मॉडर्निस्ट जो मॉडर्निस्ट थे, दे वर ह्यूमनिस्ट who had stable moral values despite of their awareness that such universals are impossible. तो जो modernist writers थे, they believed in universals which are applicable everywhere. लेकिन पोस्ट मॉडर्निज्म में ऐसा नहीं था. जो पोस्ट मॉडर्निस्ट थे, they were all lost. मॉरल वैल्यूज़ नाम की तो चीज़ ही नहीं थी. जब एक इंसान दूसरे को मार रहा है, उसका खून का प्यासा है, वर्ल्ड वॉर हो रही है, तो कहाँ कोई मॉरल वैल्यूज़ को लेके बैठेगा. तो मॉडर्निस्ट जो थे, they believed in universals, but like there were
they were humanist and they had a stable moral values despite of their awareness. अवेयर थे वो कि यूनिवर्सल जो है वो इम्पॉसिबल है, और पोस्ट मॉडर्निज्म में तो हमें दिख ही गया वो. Therefore, postmodernism differs from modernism on humanistic grounds. तो यहाँ भी हम डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं. इहाब हसन जो आपका सेकंड टेक्स्ट है उसमें भी यही बात होनी है. जब यहाँ हम इनकी बात करें डिफरेंसेस की, तो यू कैन इवन कोट की another scholar Ihab Hassan has given a tabled difference between postmodernism and modernism, और यहाँ आप ऐड कर सकते हो. Finally, Linda Hunchian wants to construct a particular way in which postmodernism can be described better. तो इसके बाद यहाँ से अब शुरू हो जाएंगी, वो इसको बहुत अच्छे लीवसेट तरीके से डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल इसको डिफ़ाइन करना और प्रॉपर सिंपल वर्ड्स में डालना पोस्ट मॉडर्निज्म को बहुत मुश्किल है. सिंस पोस्ट मॉडर्निज्म इज़ एन ऑन गोइंग कल्चरल प्रोसेस, ऑन गोइंग है, और एक्टिविटी विच रिक्वायर्स अ पोइटिक्स. पोइटिक्स का मतलब एन ओपन एवर चेंजिंग थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर बाय विच टू ऑर्डर बोथ आर कल्चरल नॉलेज एंड आर क्रिटिकल प्रोसीजर्स. द पोइटिक्स वुड फंक्शन. अब पोइटिक्स क्या करेगा, जैसे अरिस्टोटल का पोइटिक्स है. सो द पोइटिक्स वुड फंक्शन, offer or work, the poetics would function, operate, work to offer assumed statement, overlapping concerns and reading literature through discourses rather than going after theory. So postmodernism is all involved about not running after the theory, but reading literature through discourses, discussions, where everyone is free to give his opinion. जहाँ हम एक थेरी के अकॉर्डिंगली टेक्स्ट को नहीं देखेंगे, हम रीडर रिस्पॉन्स के हिसाब से देखेंगे, हम टेक्स्ट को देखेंगे, हम रीडर के ऊपर उसका इन्फ्लुएंस रिस्पॉन्स क्या है उसको देखेंगे, या रीडर का रिस्पॉन्स टेक्स्ट की तरफ क्या है उसको देखेंगे. Linda critically analyzes the theories of Terry Gilton and Frederick Jameson in detail, who separated practice and theory in postmodernism. तो यहाँ पे वो क्रिटिकली एनालाइज कर रही है टेरी गिल्टन और फ्रेडरिक जेमसन की थेरीज़ को, जिन्होंने प्रैक्टिस और थेरी जो है पोस्ट मॉडर्निज्म की उसको अलग किया है. शी एक्यूजेस देम ऑफ फॉर्मिंग देयर आर्ग्यूमेंट्स इन एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स विदाउट थिंकिंग ऑफ प्रैक्टिकल यूज़. तो इन पे ब्लेम कर रही है वो कि चाहे वो फ्रेडरिक जेमसन है, चाहे वो टेरी गिल्टन है, दोनों ने ही एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स में डिफ़ाइन करने की कोशिश की है. उन दोनों ने ही प्रैक्टिकल यूज़ जो है पोस्ट मॉडर्निज्म की उसके बारे में नहीं सोचा. एट फर्स्ट Eagleton's criticism and her views on postmodernism seem to be different, but soon it becomes clear that her statements have led to form a poetics to study postmodernism which deals with both theory and practice. तो शुरू में तो लगता है कि टेरी गिल्टन का जो क्रिटिसिज्म है, उसके जो व्यूज़ हैं पोस्ट मॉडर्निज्म को लेके वो डिफरेंट है, बट बहुत जल्द ये सामने आ जाता है कि जो उसकी स्टेटमेंट्स हैं, हेल्प मिली है उनसे एक पोइटिक्स, एक थेरी को फॉर्म करने के लिए, जिसके थ्रू पोस्ट मॉडर्निज्म को स्टडी किया जाए, विच डील्स विद बोथ थेरी एंड प्रैक्टिस, और वो थेरी और प्रैक्टिस दोनों के साथ डील करती है. शी शोज़ फॉर अ पोइटिक्स विच वुड नॉट place itself between theory and practice, but rather seek a position within both. तो वो ऐसा पोइटिक्स, ऐसी थेरी फॉर्मुलेट करना चाह रही है यहाँ पे, जहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे थेरी और प्रैक्टिस के बीच की बात नहीं होगी, पोजीशन होगी दोनों के बीच में, ताकि उसमें थेरी भी आए और प्रैक्टिकल भी आए. शी ऑल्सो थिंक्स ऑफ ऑल द पैराडॉक्सेस. पैराडॉक्सेस क्या होती हैं, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट. अगर मैं कहूँ सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट बाय दोज हु नेवर सक्सीड, कि सक्सेस के असली मायने उनको पता है जिनको कभी सक्सेस ही नहीं मिली, तो दिस इज़ अ सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट. सो शी ऑल्सो थिंक्स ऑफ ऑल द पैराडॉक्सेस विच हेल्प टू see postmodernism from different angles. According to her, the recognition of difference in the first step is the first step towards theory, and postmodernism is flooded with contradictions and differences. तो postmodernism में बहुत सारी contradictions और differences हैं, और recognition जो है डिफरेंस की, डिफरेंस ढूंढना postmodernism में सबसे पहला स्टेप है, इसको theorize करने में, इसकी प्रॉपर थेरी देने में. Thus, a poetics is must for the in-depth study of postmodernism which thrives on contradictions.
तो किस पे पाल पोस के बड़ा किया गया पोस्ट मॉडर्निज़म को, वो है कॉन्ट्रडिक्शंस। जो बीच में कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, जो असहमतियाँ हैं कॉन्सेप्ट के अंदर ही, उनके ऊपर ये थ्राइव करा है, फ्लरिश करा है। और एक पोइटिक्स पक्का एक थेरी ज़रूर चाहिए जिससे इसको अच्छे से इजीली डिफ़ाइन करके समझा जा सके। और द मेटा लिंग्विस्टिक कॉन्ट्रडिक्शन, और जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, दे आर मेटा लिंग्विस्टिक कॉन्ट्रडिक्शंस जिनकी हम बात कर रहे हैं। दैट इज़ ऑल अबाउट लाइंडा हंचियन। और जैसे यहाँ पे ये भी डिफरेंस बताने की कोशिश करी है, एहाब हसन इज़ मच ईजियर दैन लाइंडा हंचियन। तो इफ़ यू कैन गो इन फॉर चॉइस तो पेपर में वो अटैम्प्ट करना, बिकॉज टेबल जो है दैट इज़ गोइंग टू गिव यू गुड मार्क्स और उससे पेजेस जल्दी फिल होंगे। सो टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ, ऑल द वेरी बेस्ट।